السلام علیکم ممبرس دکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید. امید کرتے ہیں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. مسٹر رائٹ منال ثنا پہلے قصے کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں. نیا ناول ہے، نئی کہانی. یہ کہانی ہے سوشل میڈیا کے دلدل میں پھنسی اشمیرا میر کے کٹھن سفر کی. من پسند شخص کی چاہ میں سراب کے پیچھے دیوانہ بھاگتی. اپنی پہچان گنوا دینے والی اشمیرا اس بات کی ہمیشہ منکر رہتی ہے کہ اس کے لیے درست شخص کا انتخاب تو صدیوں پہلے ہی ہو چکا تھا. اس کی ناک کوششوں کے بعد بھی جو حقیقت اسے قبول کرنا پڑتی ہے وہ اس کے لیے کڑی آزمائش بن جاتی ہے. کہانی ہے اس اشمیرا کی جو اللہ کی طے کردہ حدود سے تجاوز کرنے کے بعد بری طرح خوار ہو جاتی ہے، مگر اللہ کی رضا کے خلاف جا کر اپنی من پسند منزل پھر بھی نہیں پا سکتی. دل دل مرتی اس لڑکی کے گمراہی سے آزمائش اور آزمائش سے انجام تک کے سفر میں جھانکتے اور باقی کرداروں کو اور ان کہانی کو پڑھتے یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ٹائروں کے چڑچڑانے کی تیز آواز کے ساتھ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی. اس نے دم ساتھے ایک چور نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص پر ڈالی جو غصے سے سرخ پڑتا چہرہ لیے اس کی سمت آ رہا تھا. جا رہا نا انداز میں دروازہ کھولے اس نے لپک کر اس کا بازو دبوچر گھسیٹتے ہوئے پوچھ سے لاؤنج اور پھر لاؤنج سے کمرے میں لے گیا. اس کے انداز پر شدید خوفزدہ اور سہمی ہوئی وہ سانس لینے سے بھی گریزاں تھی. مرد کا ہاتھ کس قدر سخت تھا یہ بات اس سے بہتر کون جانتا تھا. کیوں گئی تھی؟ کمرے کے عین وسط میں لا کر اس کا ہاتھ اس زور سے جھٹکا گیا کہ وہ لڑکھڑا کر بمشکل سمجھی. میں پوچھ رہا ہوں میری غیر موجودگی میں میری اجازت کے بغیر میرے گھر سے باہر قدم کیوں نکالا؟ اس کے سر پر کھڑا وہ گرج رہا تھا. اس قدر حد تک آمیز سلوک پر اس کی آنکھیں بھرنے لگی. تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چیٹ کرنے کی؟ ہاں؟ بمشکل خود پر ضبط کیے وہ دبے دبے لہجے میں غرایا تھا. یہ میرا گھر ہے، تم میری بیوی ہو. میرے لیے اپنی اور اس گھر کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے، تو کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے تو باقاعدہ جھنجھوڑ ڈالا. ایک لمحے کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج کے دن کا اختتام ایسے ہونے والا تھا. وہ اس نے بلایا تھا، بس ضروری بات. بدوقت اس نے لب کھولے. بھرائی آواز کے علاوہ وہ اس وجہ سے بھی جواب دینے سے قاصر ہو رہی تھی کہ جواب دینے والا تھا ہی نہیں. ضروری بات؟ اس نے تعجب سے دہرایا. پھر غصے کی ایک شدید لہر اٹھی تو اس نے ایک دفعہ پھر اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ٹو ہیل ود ہم، مجھے تمہارا جواب چاہیے. اس کے کندھوں کو اس نے یوں دبوچ رکھا تھا جیسے اس کی گردن ہو. ہاں، آج وہ اس لڑکی کو واقعی مار دینا چاہتا تھا. اس کی سزا اس سے کچھ کم بھی نہ تھی. وہ جو کچھ بھی چاہتا تھا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. تم گئی کیوں؟ کیا تمہیں یاد نہیں تھا کہ تم میری بیوی ہو؟ چپتے ہوئے لہجے میں اس نے سختی سے پوچھا. کندھوں پر دباؤ اور کچھ اور بڑھا تو وہ تڑپ اٹھی تھی. پلیز چھوڑ دے، مجھے تکلیف. روتے ہوئے اس نے اپنی تکلیف کا احساس دلانا چاہا مگر اس کے سرد و سپاٹ لہجے میں بات کاٹ دی. بہت خود غرض ہو تمہیں صرف اپنی تکلیف دکھتی ہے. کسی دوسرے کے دل پر کیا گزرتی ہے تمہیں کبھی اس سے فرق نہیں پڑتا. غصے سے سرخ پڑتا چہرہ اور غیظ و غضب سے انگارہ ہوتی آنکھیں لیے وہ بھی گہری تکلیف میں لگتا تھا. یوں جیسے بہت کچھ لٹ گیا تھا. میری بیوی ہو کر میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے. جانتی ہو ایسی عورت کی کیا سزا ہے؟ اس کے چہرے کے قریب جھکتے یک ٹھنڈے لہجے میں بولتا وہ اسے دہشت زدہ کر گیا تھا. وہ وہ نہیں آیا تھا. اسے دور جانے کے لیے مسلسل مزاحمت کرتی وہ روتے ہوئے بولی. میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں کیونکہ وہاں تمہارا سو کالڈ بھائی جو پہنچ گیا تھا. اس کا بے وقوفانہ جواب سن کر وہ گرجا تھا. اگر وہ نہ پہنچتا تو وہ کمینہ شخص تمہارے ساتھ کیا کرتا جانتی ہو؟ اتنی تلخ بات کرتا وہ اسے شرمندہ کر رہا تھا. اب ایک شادی شدہ لڑکی سے زیادہ بھی اسے کیا کام ہو سکتا تھا؟ کیا یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں. تم اچھے سے جانتی ہو مگر پھر بھی تم گئیں. ابلتی گرم سانسیں اس کے چہرے پر انڈیلتا وہ غصے اور تکلیف سے بولا. چند ہمیں دونوں کے بیچ خاموشی رہی. وہ اس کے جواب کا منتظر تھا تو وہ اس کے سخت الفاظ پر بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی. ہمیشہ کی طرح اچانک ہی اس پر اپنا باغی پن غالب آیا. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ بھی اسی کی طرح چلائی تھی. ہاں گئی تھی میں اس سے ملنے کیونکہ محبت کرتی ہوں اس سے. میرے ماں باپ نے زبردستی آپ سے شادی کروا دی ورنہ آج آپ کی جگہ وہ ہوتے. سمجھے آپ؟ اس نے پوری قوت لگاتے اسے پرے دھکیلا خود کو اس کی گرفت سے نکالنے میں کامیاب ہوئی. اس کے الفاظ مقابل کے خون کو نقطۂ ابال تک پہنچا گئے.
क्या ये ज्यादती नहीं थी कि वो अपने शौहर के मुंह पर किसी और मर्द की मोहब्बत का दम भर रही थी? उसके दिल में बर्छी चलने से भी ज्यादा दर्द उठा। गुस्सा बर्दाश्त न हुआ तो वो पागल होता चिंघाड़ा, बकवास बंद करो, एक लफ्ज और निकाला तो जान ले लूंगा तुम्हारी। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ना ही मैं तुम्हारे बाप की तरह तुम जैसी लड़की से जान छुड़वाने के लिए किसी और के गले डाल सकता हूँ। जिस तरह वो चिल्लाया था उसका सहमना भी बनता था, और उसका दिया ताना कोई छोटा तो ना था। बिलवास्ता उसने उसके किरदार पर हमला किया था, मगर यहाँ मसला ये था कि वो खुद भी एक सोच में पड़ गई थी। क्या वाकई उसका किरदार था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने सवाल का जवाब जानते हुए मजीद सहम कर नामहसूस अंदाज में उसने 2 कदम पीछे लिए। इस खौफ की वजह एक ही थी कि मर्द के उठे हाथ का मज़ा वो अच्छी तरह चख चुकी थी। तुम्हें यहीं मेरे पास मेरे साथ रहना है। भले फिर मजबूरी से रहो, मगर मेरी वफादार होकर रहना तुम पर फ़र्ज़ किया गया है। उसके 2 कदम दूर होने पर वो 4 कदम करीब आया। फिर से वही सर्द और सपाट अंदाज़। आज पहली दफ़ा वो उस शख्स को गुस्से में देख रही थी, और पहली दफ़ा में ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो शख्स उसकी हरकतों पर कभी समझौता नहीं करने वाला था। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती मेरी, सिर्फ़ मेरी वफ़ादार बनाकर दिखाऊँगा, और हाँ, फिर उस वक़्त तुम्हारे मुँह से सिर्फ़ मेरा नाम निकलेगा। सिर्फ़ मेरी मोहब्बत का दम भरोगी तो। उसने हर एक लफ्ज़ पर ज़ोर दिया था, जैसे अभी पाबंद कर दिया हो। एक दफ़ा फिर उसे बगावत का दौरा पड़ा, मगर उस दफ़ा उसने आवाज़ धीमी रखी। बस कर दें, कुछ गलत नहीं किया मैंने। ना ही वो वहाँ आया था। भाई को वहाँ बैठे देखकर उनकी वजह से उसने सामने आने से इनकार कर दिया। मेरे बहुत इसरार पर भी वो सामने नहीं आया। इतना कहते ही वो फूट-फूट कर रोने लगी। उसके आँसू और उनके पीछे छुपा दर्द उसे चाबुक की तरह लगा था। उसके सामने ना आने का और अपनी डेट के नाकाम हो जाने का बहुत दुःख है तुम्हें। आखिर ऐसा भी क्या करना था उससे मिलकर? उसने एक ही जिस्त में उसे चा लिया। इस दफ़ा उसकी जारहाना गिरफ्त में उसका नाजुक जबड़ा था। घर में एक मर्द तुम्हें 24 घंटों में से 16 घंटे अवेलेबल होता है। उसके बावजूद भी तुम्हें खुफिया जगहों पर किसी गैर मर्द से मुलाकातें करने की ज़रूरत क्यों कर महसूस हुई? उसके अल्फाज उस पर कोड़ों की तरह बरस रहे थे। हाँ, उसने जो हरकत की थी उस पर किसी भी मर्द के, बल्कि शौहर के यही अल्फाज हो सकते थे। शायद इसलिए कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि इस मर्द ने कभी तुम्हें यह एहसास ही नहीं दिलाया कि मर्द आखिर होते कैसे। तुम्हें बताऊं मर्दों की फितरत? अपनी तरफ इशारा वो करते, बोलते आखिर में उसने बड़े तीखे, चुभते लहजे में मायने ख़ेज़ी से इस्तफ़सार किया। बल्कि अब तो बहुत ज़रूरी हो गया कि तुम्हें बताया जाए कि उस बेगैरत इंसान ने तुम्हें ज़रूरी बात का बहाना बनाकर किस काम के लिए बुलवाया था। तुम्हें वो सब बताया जाए जो तुम्हारे भाई के वहाँ ना पहुँचने की सूरत में वो तुम्हारे साथ करता। वो जो नज़रें मिलाने के काबिल ना रही थी, अब उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जो तहरीर दर्ज थी उस पर कँपकँपी तारी कर गई। उसके चेहरे पर दहशत-ज़दा तासुरात फैलने लगे। आँखों में सहमी हिरनी सा खौफ था। उसे एक चेहरे के बेक वक़्त उतने तासुरात बदलते देखकर वो जो पहले ही गुस्से से हवास खोए बैठा था, झटके से उसे करीब कर गया। मैं चाहता हूँ कि आइंदा मुझे धोखा देकर मेरे घर की दहलीज फलांगने से पहले तुम्हें वो सब सबक याद आए जो आज मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। बर्फीले, स्पार्ट लहजे ने मुकाबल के कानों में जैसे सूर फूँका। वैसे हरगिज़ नहीं चाहती थी, मगर आज खुद को बेबसी की इंतहाओं पर महसूस कर रही थी। भले उसकी गलती बहुत बड़ी थी, बल्कि गुनाह था, मगर वो अपने लिए ऐसी सज़ा कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। ज़्यादातर उसके पथरीले कठोर और सर्द मायनी ख़ेज़ तासुरात को ना सहारते वो बेख्तियार सुनहरी पलकों की झालर गालों गालों पर साया फ़िगन हुई, तो वो हिरनी जैसी खौफज़दा भूरी आँखें बंद हो गईं। अगले ही लम्हे मुकाबल ने सुर्ख़ और सफ़ेद चेहरे पर मौजूद उन बंद ग़लाफ़ी आँखों को शफ़ाफ़, नमकीन पानियों का ख़ामोश झरना बनते देखा था, और फिर देखता ही रह गया था। यूनिवर्सिटी का ग्राउंड इस वक्त सुनसान पड़ा था। इक्का-दुक्का क्लासेस हो रही थी, जबकि वीकेंड की वजह से कुछ डिपार्टमेंट आज छुट्टी पर थे। ग्राउंड के जनूब की सिमत खाली पार्किंग एरिया में उस वक्त दुनिया माफिया से बेखबर एक ग्रुप बैठा था। कुछ गाड़ियों के बोनट पर थे, तो कुछ ने चौकीदारों की कुर्सियां ले रखी थी। यार टोनी, कितनी बोरियत हो रही है। कुर्सी पर बैठे एक लड़के ने कांच के कलम नुमा पाइप से लंबा सा कश भरते दूसरे को मुखातिब किया। तो क्या करें, अब तेरी बोरियत खत्म करने के लिए भंगड़े डालें? टोनी, जो खुद भी उसके वाले शुगल से लुत्फानंदोज हो रहा था, कुछ बिगड़ कर बोला। यार तू समझ नहीं रहा, चल किसी बच्ची बच्ची को तंग करते हैं।
टाइम पास हो जाएगा। जोजो ने झुककर कुछ राजदारी से कहा। दो लड़कियों के अलावा सबने उसे बोरियत मिटाने के लिए आइडिया पर भरपूर कहकहा लगाया। आय हाय! ये की है ना तूने टोनी की यारों वाली बात। एक लंबा कश भरकर बड़े स्टाइल से धुआं छोड़ते उसने खासे लोफराना अंदाज में कहा था। कौन सी बच्ची के साथ टाइम पास करना है? बस उंगली का इशारा कर दे। अब वो जोजो के कंधे पर हाथ फैलाए बड़ी मोहब्बत से पूछ रहा था और दो के अलावा बाकी सब हनूस कहकहे लगा रहे थे। ये पूरी यूनी मेरे बाप की है। जिस लड़की ने ड्रामा करने का सोचा उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। मगरूराना अंदाज में बोलता वो इन सबको मजीद चौड़ा कर रहा था। ये सच था कि जब से उनके ग्रुप में ये टोनी नाम का लड़का शामिल हुआ था वो हर गलत काम करने लगे थे। इसी की वजह से तो वो ये सब आहिस्ता आहिस्ता हर तरह के नशे के आदी हो रहे थे। अच्छा, फिर जोजो ने कुछ सोचने की कमाल अदाकारी करते पार्किंग एरिया के चारों अतराफ में देखा। खुद वो ग्राउंड के जनूब में थे जबकि ग्राउंड की शुमाली सम्त में मौजूद कैफेटेरिया से बाहर निकलती अकेली लड़की पर उसकी नजर ठहर गई। ओए होए, मेरे तो मजे हो गए। ये वही है, नया माँ, 2 साल जूनियर। उसने तो बकायदा खड़े होकर पागलों की तरह शोर मचाना शुरू कर दिया। कौन सी वाली? टोनी भी फौरन मुतवज्जो हुआ। वो उसके इशारों की सम्त देखने लगा। वो वो वही जो कैफे से बाहर आ रही है। अब की बार सबने ही सर उठाकर बकायदा सर से पांव तक उस लड़की को देखा। साले, बड़ा कमीना है तू। लड़की को पहचानते टोनी ने जोजो की पुश्त पर एक जबरदस्त थप रसीद की। पता है ना, वो अपने सैम की प्रॉपर्टी है। उसने सैम को सुनाने को जानबूझकर बुलंद आवाज में कहा। अबे, कौन? एक गाड़ी के बोनट पर आड़ा तिरछा लेटा छोटे छोटे पैकेट्स में मौजूद पाउडर सूंघता सैम अपने नाम पर तेजी से सीधा होकर बैठा। सैम, सैम वो तेरे वाली। सिगरेट पीता पीता बंटी सरत से सैम के करीब आया। उसे संभालते उसने इशारे से उसे कैफे से निकलती लड़की दिखाई। सैम की बंद होती आंखें एक लम्हे को खोली। वो अब तक घर वापस क्यों नहीं गई थी? हाँ, वो तो मेरी है कमीनो। चलो, सब नजरें हटाओ उस पर से। उसे होश आया तो तेजी से बोनट से उतरा, चिल्लाकर उन्हें मुखातिब किया। उसके कहने पर बंटी के अलावा बाकी का सबका मुंह बन गया था। वो यूं ही किया करता था, किसी को उसकी तरफ देखने भी नहीं देता था। वैसे यार, आपस की बात है। अपने सैम ने चीज तो बड़ी मस्त ढूंढी है। टोनी ने राजदारी से उन्हें मुतवज्जा करते आखिर में शरारत की। सैम का घुमा हुआ दिमाग मजीद घूमने लगा, जबकि टोनी की आवारगी अब भी हनूस थी। नाम क्या था इसका? मैं भूल गया। स- 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 जोजो की जुबान से उसका नाम ही नहीं जाता। अगर सैम आगे बढ़कर जोजो की जुबान से उसका नाम निकल ही जाता, अगर सैम आगे बढ़कर उसका गिरेबान सख्ती से ना जकड़ लेता। खबरदार जो किसी ने उसका नाम भी लिया, सालो, जबान काट कर फेंक दूंगा तुम सबकी। सैम, रिलैक्स कर। वो तो बस। बंटी डरते हुए आगे बढ़ा। उसे अंदाजा था कि जिस स्पीड से आज उन तीनों ने ड्रग्स इस्तेमाल किए थे, ये सब तो होना ही था। बस, कुछ नहीं। चिल्लाकर कहते उसने एक झटके से जोजो को वापस कुर्सी पर फेंका। टोनी फौरन जोजो की तरफ बढ़ा। ये सारी यूनी जानती है। लड़खड़ाते हुए सैम ने घूमकर चारों तरफ इशारा करते आखिर में अपनी तरफ इशारा कर किया। वो सिर्फ सैम की है। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि पार्किंग एरिया में जो इक्का दुक्का चौकीदार थे वो बासानी सुन सकते थे। जो इसके रास्ते में आता है बड़ी खामोशी खामोशी से उसका बंदोबस्त करवा देता हूँ। अब कोई नाम भी ना ले उसका। जानो दो उसे। उसका अंदाज अब भी हनूस था। अबे चल, तू हमारे सामने बड़ा बकवास करता रहता है। कभी उससे तो बात करता भी नजर नहीं आया। जोजो से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न हो सकी तो सबके रोकने के बावजूद उसने दोबारा सैम को छेड़ा। तेरे सामने करना जरूरी है क्या? वापस गाड़ी की तरफ जाता सैम जा रहा ना अंदाज में पलटा और एक दफा फिर उसका गिरेबान अपनी गिरफ्त में लेते चिंघाड़ा। साले, अपने सारे मसले लेकर मेरे पास आती है वो। हाँ, आती है, भाई समझकर। जोजो ने बेखौफी से कहते कहकहा लगाया। उसने दरअसल इस बात पर चोट की थी कि वो हमेशा उसे भाई कहकर मुखातिब करती थी। उसे बुरा लगता था मगर अभी वो इसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझता था। मगर ये जोजो अपनी तमस्खराना बातों से उसके दिमाग के शरेआनों को भड़काता रहता था। तेरा मुंह तोड़ दूंगा जोजो। उसे कुर्सी की पुष्ट पर धकेलते सैम ने उसके नाक पर मुक्का जड़ा। ओ यार, छोड़ ये सब। बंटी और टोनी ने फौरन मुदाखलत करते गुत्थम गुत्था होते सैम को दूर किया।
सैम जाने दे यार, वैसे भी वो हॉस्टल की तरफ जा रही है, बंटी ने आजिज़ाना लहजे में कहा। सैम ने उसे छोड़कर एक नज़र ग्राउंड में डाली। आहिस्ता कदमों से चलती वो हॉस्टल वाली साइड पर जा रही थी। सर झटक कर नजरें हटाते वो अपने कॉलर से नादीदा गर्द झाड़ने लगा। एक गेम गेम खेलते हैं अपने सैम के साथ। तो टोनी जो अभी तक जोजो की दुर्गत पर अफसोस कर रहा था, न जाने उसके खराफाती दिमाग को क्या सूझी थी। सैम ने खूनख्वार नजरें समेत मुड़कर देखा था। एक लम्हे को टोनी गड़बड़ा गया, फिर जोर देते हुए बोला, देख, तेरी प्रॉपर्टी है तो गेम भी तुझे ही खेलना पड़ेगी। टोनी के मुंह से उसे अपनी प्रॉपर्टी कहते सुनकर सैम के तने हुए कुछ तासुरात ढीले पड़े थे। समझ, तेरा आज का टास्क है, टोनी ने सुकून का सांस लेते हुए बड़ी मजबूत से अंदाज में कहा। हम सब के बीच बैठकर 2 सालों से उसे अपनी प्रॉपर्टी कह रहा है तू। आज हम सब के सामने ही तू इसे प्रपोज कर। तेरी बात मानूंगा मैं। सैम बिगड़ा था। उसने तो कभी प्रपोज करने का सोचा भी नहीं था। कजन है वो मेरी, घर वालों से बात चलवाऊंगा, यही सोचकर उसने कभी उसे नहीं छेड़ा था। जब घी सीधी उंगली से निकल सके तो क्यों बिला वजह उंगली टेढ़ी करनी। तो यानी तू चैलेंज कबूल करने से उससे कतरा रहा है? टोनी ने नाराजगी से कहा। असल में वो बस अपने अल्फाज से उसे कायल कर रहा था। अच्छे से जानता था कि सैम ने इस वक्त सबसे ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल कर रखा था। बंटी इस सब पर बस तासुब से सर हिला रहा था। वो मेरी है, बस मेरी, उससे कतराऊंगा? कतराने वाले बात पर सैम का मीटर आउट हुआ था। चल, फिर डन कर दे। जो अपने नाक पर हाथ रखे बस खामोशी से टोनी और उसकी कमीनगी मुलाहिजा कर रहा था। बदले में मुझे क्या मिलेगा? सैम ने कुछ सोचकर हामी भरी। बदले में हम सब तुझे चेयर अप करेंगे। टोनी एकदम पुरजोश हो गया था। जबकि अपनी बात पर उसने एक दफा फिर सैम के माथे पर शिकनों का जाल देखा तो सरद से बोला, चेयर अप करने से तेरी बच्ची इंप्रेस होगी यार, समझा कर। क्यों यार? ठीक कहा ना? सैम के तासुरात देखकर वो गड़बड़ा गया था, तभी उन सबको भी मुखातिब किया। उसकी बात पर जोजो का सर जोर-जोर से इस्पात में हिला था। अपने सब दोस्तों को हामी भरते देखकर सैम कायल होता जाने लगा। ऐसे ना जा सैम, तुझे चढ़ा हुआ है। बंटी ने फौरन रुका। वो तमाशा नहीं चाहता था, मगर सैम के उसके पास जाने से सिर्फ तमाशा ही होने वाला था। कोई नशा ऐसा नहीं जो सैम के सर चढ़कर बोले। सैम अब हवासों में नहीं था। न जाने क्यों अचानक ही उस लड़की का जुनून मुंह जोर हो गया था। फिर भी सैम, बंटी अब भी रोक लेता अगर सैम उसे ना घूरता। अच्छा, थोड़ा पानी सर पे डाल ले। उसने मुसालहत अंदाज अपनाया तो सैम रजामंद हो गया। बाकी सब बंटी की हरकतें देखकर मुंह बना रहे थे जो पानी की बोतल उसके सर पर उलट रहा था। कुछ लम्हे बाद वो सब ग्राउंड में मौजूद थे, जबकि वो लड़की अब बिल्कुल हॉस्टल की इमारत तक पहुंच चुकी थी। रुको! सिर्फ सैम आगे बढ़कर उस तक पहुंचा। जी? आवाज न पहचानने पर वो सहम कर मुड़ी। उसके हसीन रूप और खौफजदा अंदाज पर सैम का दिल डूबकर उभरा। घर नहीं गई। उसने खुद पर काबू पाया। अलबत्ता लड़की भी उसे पहचानकर अब समझ चुकी थी, तभी पटर-पटर बोलने लगी। भाई ने फिर मना कर दिया। आपको पता है, भाभी की वजह से, उनकी वजह से मैं यहाँ फंस गई, वरना आसानी से अभी 1 महीना तो गुजर ही सकता था। इतना लंबा सेमेस्टर और मुझे इतनी जल्दी आना पड़ा। अभी तो मेरी फ्रेंड्स सारी भी नहीं आई। हम्म। उसके तेजी से हिलते होंठों की हरकत देखता सैम आज बुरी तरह हवास खो रहा था। बस यही बात है, भाई का नकाब भी अटेंड नहीं कर सकी। अब हॉस्टल में रहना पड़ रहा है। 1 हफ्ते में ही इतना बोर हो गई हूँ कि क्या बताऊँ। आपको पता है, भाई, मुझे अम्मी की भी बहुत याद आ रही है। उसने मज़ीद जले दिल के फफोले फोड़े, इस बात से बेखबर कि आज मुकाबिल उसका खैरख्वाह बनकर उसका मसला सुनने नहीं बल्कि होशो-हवास से बेगाना होकर अपना मसला सुनाने आया था। उसकी गहरी खामोशी और लो देती नज़रों पर वह गड़बड़ाई। हैरत से उसकी तरफ देखा जो होश में नहीं लगता था। इसी दौरान सैम ने हाथ बढ़ाकर चादर से बाहर निकलकर माथे पर झूलती उसकी लट पकड़ ली। वो सटपटाई। चारों तरफ देखा तो सिर्फ उसके दोस्त नजर आए। वो बड़ी तवज्जो और गौर से उसके मंजर से लुत्फानंदोज हो रहे थे। भा जब वो उंगली जब उसकी लट उंगली पर घुमाने लगा तो वो होश में आते कुछ बोलते पीछे होने लगी, मगर सैम ने उस दफा उसके मुंह से भाई का लफ्ज निकलने नहीं दिया। श्श! इसके होंठों पर उंगली जमाते एक कदम उसकी समत बढ़ाए वो खुमार आलूद लहजे में बोला, कुछ कहने आया था। उसने एक दफा फिर डरते हुए चारों तरफ देखा।
दूर दूर तक भी उसके दोस्तों के अलावा और कोई न था। आई एम इन लव विद यू माई लेडी। वो भटी भटी आंखों से उसे देख रही थी, जो बड़ी मोहब्बत से उसके दाएं गाल पर हथेली फैलाए खोए खोए से लहजे में बोला। सैम की इस हरकत पर जहां उसका दिल पूरी रफ्तार से धड़कने लगा था, वहीं कुछ फासले पर खड़े जोजो ने टोनी के कंधे पर सर रखकर खबासत से कह कहा लगाया, ये आप क्या? उसने लरसते लब बमुश्किल खोलने चाहे, मगर वो बोल नहीं पाई, क्योंकि अब वो उसके दोनों हाथ पकड़े एक घुटना मोड़े जमीन पर बैठ चुका था। मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करो फौरन, ताकि आज इस पूरी यूनिवर्सिटी के दीवारों को भी पता चले कि तुम सिर्फ मेरी हो। हॉस्टल की बाउंड्री में घुटनों के बल झुका वो बुलंद आवाज में बोला। वो सहम गई थी। उस इंसान का ये रूप उसे किस कदर खौफजदा कर रहा था, ये बस वही जानती थी। उसने तो हमेशा उसे अपने भाई की तरह ख्याल रखते पाया था। बाउंड्री से दूर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में उस वक्त सिर्फ उन आवारा लड़कों के बेहंगम कह कहे गूंज रहे थे। छोड़े मुझे, आप मेरा तमाशा बनवा रहे हैं। चंद लम्हों में खुद को संभालने के बाद उसने दृष्टि से अपने हाथ छुड़वाए। आंखों में तैरती नमी साफ करते वो तेजी से मुड़ी। कहाँ जा रही हो? सैम ने सरहद से उठकर झटके से उसका बाजू खींचते अपने करीब किया। वो लड़खड़ाकर बमुश्किल समझी संभली, मगर सर पर नरमी से रखी चादर वो ना संभाल सकी। उसकी ना सिर्फ चादर सर से बल्कि कंधों से भी उतरकर सैम जमीन पर सैम के पैरों में गिर गई थी। शर्मिंदगी से चूर वो अपने उठते हाथ को रोक नहीं सकी। नाजुक हाथ का एक भरपूर मगर गैर मुतवक्को थप्पड़ हॉस्टल की बाउंड्री समेत यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में भी गूंजा। ग्राउंड में खड़े लड़कों के हाथ एक कोर्स में अपने होंठों पर गए। बहुत अकड़ता था ना सैम। अब अंजाम देकर जोजो की तो बाछें ही खिल गई थी। खुद सैम की आंखें भी फटी की फटी रह गई, जबकि वो अब झुककर चादर उठाते कांपते हाथों से ओढ़ रही थी। फिर एक हाथ से आंसू से फिसलती नमी आंखों से फिसलती नमी को साफ करते उसने सैम को धक्का दिया। वो बुरी तरह लड़खड़ाया। अभी तक थप्पड़ के ट्रामा से वो बाहर नहीं निकल सका था। आइंदा मेरी राह में आए तो घर में सबको बता दूंगी। आंखों से फिसलते मोटे मोटे आंसुओं को दृष्टि से साफ करती वो सख्ती से बोलकर दोबारा मुड़ गई। कदम बेजान हो रहे थे। मर्द पर हाथ उठाकर वो खुद भी खौफजदा थी। जिस्म और हाथ कांप रहे थे, मगर वो बगैर रुके चलती जा रही थी। उसे दूर जाते देखकर जोजो और टोनी ब्रोनिस ब्रो वंस मोर शी इज योर्स के आवाज कसते कह कहे लगा रहे थे। सैम होश में आया। उसे जिस कदर अपनी बेइज्जती महसूस हुई, ये बस वही जानता था। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? लपक कर उसके सामने आते वो उसे कंधों से जकड़ चुका था। हो क्या तुम? उसे झंझोड़कर यक ठंडे लहजे में उसने बावर करवाया। चंद सेकंड लगेंगे मुझे और मसल दूंगा तुम्हें। एक लम्हे को उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनीखेज लहर दौड़ी थी। अगर अभी वो कुछ कर देता तो वाकई बेबस थी, क्योंकि हॉस्टल का चौकीदार भी बाउंड्री से बहुत दूर था। होश में रहकर बात करें, वरना दफा हो जाए। अपने आप को उसकी सख्त गिरफ्त से निकालती वो भीगी आवाज में मजबूती से बोली। तमीज से। एक लम्हे में वो उसे दोबारा अपनी जारहाना गिरफ्त में ले चुका था। फिर उसके बेहद करीब आते कान के करीब झुककर सरगोशी की। मेरे दोस्त देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? उसके करीब आने पर इसके वजूद में फरीरी सी दौड़ी। ग्राउंड से हूटिंग की आवाजें आ रही थी, यानी उसके दोस्त इस दीदा दलेरी पर उसका सीना चौड़ा कर रहे थे। उसकी बात के बाद उसके दोस्तों की वहां मौजूदगी का मकसद वो लम्हों में समझी थी। वो सिर्फ अपनी सो कॉल्ड मर्दानगी दिखाने के लिए शोबाजी के चक्कर में ये सब कर रहा था। तुम्हारे दोस्त भी बिल्कुल तुम्हारी तरह आवारा हैं। बगैर किसी लिहाज के वो नखवत से बोली। आंसू बहना बंद हो चुके थे, मगर आवाज अब भी भराई हुई थी। पहचानने में देर हो गई मुझे, मगर अब और नहीं। जो दिखावे की तमीज का दायरा हमारे बीच तुमने कायम कर रखा था, अब से वो भी खत्म। उसने जबरदस्ती अपने कंधों को उसकी गिरफ्त से निकाला और मजबूत लहजे में बोली। मैं तुम्हें भाई समझकर तुमसे बात कर लेती थी, मगर तुम। वह रुकी। सैम अब बस उसके चेहरे पर पहला दुख और तकलीफ के तासुर देख रहा था। घर से यूनी की आड़ में निकलते हो और यहाँ आकर ये सब। क्या होगा जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा? ठंडे से लहजे में इस्तफसार करती वो सैम को डरा गई। इस सब का ये नतीजा भी हो सकता है कि उसने सोचा भी नहीं था। थप्पड़ खाने के बाद खोए हुए हवास वापस लौटने की रही सही कसर अब निकल रही थी। मैं सबको सब कुछ बताऊंगी। और ये जो तुम
उसने हैरान खड़े सैम की शर्ट की जेब से झांकता सफेद पाउडर वाला छोटा पैकेट उचक कर दृष्टि से जमीन पर दे मारा। ये जो तुम ये कारनामे सरंजाम दे रहे हो इन लफंगों के साथ, अच्छे से तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करेंगे मेरे दोनों भाई। उसने एक नजर मुड़कर उन आवारा लड़कों पर डाली और भागती हुई निकल गई। सुनो, अभी काफी गुस्से में लग रही हो तुम। सैम उसके पीछे भागा। रात को कॉल पर उसके हम कदम होने की कोशिश में हलकान होता वो वहीं से बोला, कॉल माय फुट। उसने दोनों हाथों से अपनी बहती आंखें साफ की और गुस्से की शिद्दत से चिल्लाते हुए बोली, तुम अब मेरी आवाज सुनने को भी तरसोगे। इस कदर नफरत पर सैम के दिल को कुछ हुआ था। वो हमेशा इज्जत और एहतराम से उससे बात करती थी, मगर आज वो बुरी तरह दिल बर्दाश्त होते उसे देख रहा था, जो मुड़कर देखने की भी रवादार न थी। कुछ लम्हों बाद वो हॉस्टल की इमारत में गुम हो गई। सैम को खौफ आया, अगर उसने घर में किसी को बता दिया। वो अभी तक वहीं खड़ा था जब पीछे से कह लगाते उसके दोस्त सर पर सवार हुए। यार सैम, ये तेरी वाली तो बड़ी मासूम दिखती थी, पर इसने तो तेरे झापड़ ही जड़ दिया। जोजो ने बड़ी हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ फैलाए। बकवास बंद कर जोजो, तुम सबका मुंह तोड़ दूंगा सालो। वो गुस्से से पागल होते हुर्राया। बंटी उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा। ये सिर्फ तेरी वजह से हुआ है टोनी। उसने टोनी का गिरेबान पकड़ लिया। अपनी बेइज्जती उसे भुलाए नहीं भूल रही थी। अभी वो लड़की ही पागल है, प्रपोज करने पर थप्पड़ मारेगी अब। टोनी ने गड़बड़ाकर सारा मलबा ही उसी पर डाल दिया। तू उसका मुंह तोड़ने की बजाय अपने यारों से लड़ रहा है। जोजो ने भी मामले की संगीली देखते अपना हिस्सा डाला। उसकी बात पर सैम का खून मजीद घूलने लगा। उस लड़की को वो छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। रिलैक्स कर सैम, तुझे मना भी किया था ऐसी हालत में मत जा उसके सामने। बंटी ने टोनी का गिरेबान छुड़वाते उसे ठंडा करना चाहा, मगर वो तेजी से पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। फिलहाल उसे यहाँ से दूर जाना था, कम से कम इतना दूर कि जहां उसे अपनी मर्दानगी पे पड़े थप्पड़ की गूंज सुनाई न देती।